बच्चों, जो ये मैं आपके लिए लेसन बना रहा हूँ उसमें पहले इंग्लिश की रीडिंग है, फिर फास्ट रीडिंग है, फिर फोनेटिक्स वाली रीडिंग है और फिर उस पोएम का या उस लेसन का हिंदी में अनुवाद है। और उसके बाद जो है हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। इसी एक वीडियो में आपको ये सब कुछ मिलेगा। ओके, हेलो चिल्ड्रन, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड another lesson. So first of all we have to read word by word, okay, then speed, and then we have to change the phonetics so you can understand the real phonetics of this lesson. Okay, now you are ready? Okay, the name of the lesson is Neha's alarm clock, and after reading all these we have to translate it in Hindi. Okay, so you have to wait till the end of this lesson. Neha's alarm clock. Narrator, you know narrator means कहानी कहने वाला. Narrator means the person who is writing this. Okay, ring ring ring, off goes the alarm clock at 6 in the morning. Neha makes a face and covering her ears with a pillow snuggles under the warm blankets. But she knows she has to get up, she mutters to herself. Neha, this alarm clock always rings at 6 and pulls me out of the bed. It's so unfair. Oh, how I would love to sleep a little longer in the morning. I wish this clock would forget its job sometimes. Narrator, sometimes fall. Neha smiles. Something falls. Neha smiles. Neha, oh, my clock has fallen. How happy I am. Tomorrow I can get up late. Narrator, next morning there is no alarm, so Neha sleeps and sleeps the small chirpy birds which come to the window sill every morning find Neha still sleeping. Birds, wake up dear, wake up fast. Narrator, Neha gets up with a start. Neha, oh no, if it's not the alarm clock, it's these birds. Why don't they leave me alone? Narrator, even this wish of Neha's comes true. The next morning there is not only no alarm clock, there are no birds either. But there is someone else who does not want her to miss the school bus. You can guess who it is. The big bright sun. He fills Neha's room with a warm smile. Neha, oh my eyes. Now it's the sun waking me up. Why can't he let me be? Narrator, even this wish of Neha's comes true. Next morning the sun is behind the clouds, so Neha snores till the hear her mother's voice. Mother,
Wake up, sleepyhead. You will miss the bus. Neha. Oh no. Why does mother have to wake me up? Narrator. There is no escape now. Neha gets up and get ready. Can you imagine what happened the next day? Neha wakes up with a start. Her watch says it is 6 o'clock. She calls out to her mother. Neha, Ma, who woke me up today? Mother smiles. Mother, who else? You, of course. Neha, but I was sleeping. How could I? Mother, now tell me, why do you eat your lunch every day at 1 in the morning, 1 in the afternoon? Neha, I feel hungry. Mother, why do you sleep at 9 every night? Because I feel sleepy. Mother, there is a clock inside you which tells you when to eat, when to sleep and when to wake up. Neha, oh. I better rush now. I don't want to miss the bus. Mother, relax, today is Sunday. Neha, oh. Now we can translate this lesson in Hindi, okay? So you can understand the meaning of different words and the moral of this story. Neha's alarm clock. Okay. Now we can just हमारे आज के लेसन का नाम क्या है? नेहास अलार्म क्लॉक, यानी कि नेहा की बजने वाली घड़ी. नरेटर यानी कहानी कहने वाला क्या कहता है? रिंग रिंग रिंग. ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning. अब क्या हुआ कि अलार्म जो है 6 बजे बज गई. नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग विद हर ईयर विद अ पिलो. उसने अपने पिलो से अपना सर ढाक लिया, फेस ढाक लिया और उसने स्नगल्स अंडर द फेस अंडर द वार्म ब्लैंकेट. और उसने अपने जो है चेहरे को और उससे ढक लिया. किससे? रुक के, ब्लैंकेट से. बट शी नो शी हैज़ टू गेट अप. शी मटर्स टू हरसेल्फ. उसको पता था कि उसको उठना है. गेट अप मीन्स उठना. गेट अप मीन्स उठना. दिस इज गेट अप. ओके. एंड मटर्स, MUTTERS, मटर्स मीन्स खुद से बात करना, बड़बड़ाना. ओके. दिस अलार्म clock always rings at 6 and pulls me out. Pulls me out. Pulls me out means मुझे उठा देती है. कौन? अलार्म. It's so unfair. Unfair means ये सही नहीं है. मतलब अगर अलार्म उसको उठा देती है तो वो कहती है कि ये सही नहीं है, मुझे सोना है. Oh, how I would love to sleep a little longer in the morning. और वो जो है सुबह के समय बहुत ज़्यादा सोना चाहती है. I wish this clock would forget its job now. Little longer morning. I wish this clock would forget its job sometime. अरे इसको अपनी को छोड़ देना चाहिए, मुझे जगाना नहीं चाहिए, अपने काम को छोड़ देना चाहिए, ऐसे सोचती है. नरेटर. समथिंग फॉल्स. कोई चीज़ गिर जाती है. नेहा स्माइल्स. नेहा स्माइल करती है. क्यों करती है वो? क्योंकि
माई क्लॉक हैज़ फॉलन, मेरी तो जो घड़ी है वो गिर गई है. हाउ हैप्पी आई एम. टुमारो आई कैन गेट अप लेट, अब मैं आसानी से कल देर से उठ सकती हूँ. नरेटर. नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म, सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, वो सोती रही. एंड स्मॉल चिड़िया, अब यहाँ पे उसको किसने जगा दिया? छोटी छोटी चिड़ियाओं ने. देखो ये चिड़िया आ गई, ये चिड़िया आ गई, ची 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 करती रहती है. और फिर क्या हुआ? विच कम टू द विंडो सिल एवरी, मतलब वो विंडो की दहलीज पर. सिल मतलब जहाँ पे वो लगी रहती है ना, उस मतलब खिड़की का जो एरिया होता है उसको कहते हैं दहलीज. नेहा स्टिल स्लीपिंग, वो तब भी सो रही है. फाइंस, तो बर्ड्स क्या कहती हैं? वेक अप डियर, वेक अप, वेक अप फास्ट, अरे जल्दी उठो जल्दी उठो. नरेटर ने फिर नेहा गेट्स अप विद द स्टार्ट. नेहा, ओ नो इट इज नॉट द अलार्म क्लॉक, इट्स दीज बर्ड्स, वाई डोंट दे लीव मी अलोन. अब वो कहती है अरे यार इनको भी मुझे छोड़ना चाहिए, तुम मत आया करो यहाँ, है ना. तो इवन दिस विश ऑफ नेहास कम्स ट्रू, और ये वाली विश भी उसकी मान ली जाती है, भगवान मान लेता है. द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो ओनली नो अलार्म क्लॉक, देयर आर नो बर्ड्स इधर. अब वो दूसरे दिन जो है ना तो अलार्म बजती है, नहीं क्या बजती है ना, चिड़ियाएँ आती है. बट देयर इज समवन एल्स हु डज नॉट wants her to miss the school bus. Can you guess who it is? आप बता सकते हैं कि अगले दिन उसको किसने उठाया होगा? The answer is the big bright sun. वो जो सूरज की रोशनी आती है तो वो पूरे उसमें फैल जाती है ना. वार्म स्माइल, यानी कि सूरज की रोशनी एकदम खुश खुश अंदर आती है और किसको जगा देती है? नेहा को. ओह माई आईज. अब उसकी आंखों में जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो सन वैकिंग मी अप, उसको जगा देता है सन. वाई कांट ही लेट मी डू बी, अरे मुझे क्यों नहीं सोने देता है. इवन दिस विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू, उसके बाद उसकी ये वाली विश भी भगवान मान लेता है. अगले दिन सूरज भी नहीं आता, वो भी बिहाइंड द क्लाउड्स, वो बादलों के पीछे. सो नेहा स्नोस टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस. अब क्या हुआ? उसकी मम्मी ने उसको जगा दिया. मदर, वेक अप स्लीपी हैड, जल्दी उठो बेटा, आलस मत करो. यू विल मिस द बस, अरे बस मिस हो जाएगी, जल्दी उठो. ओ नो वाई डज मदर हैव टू वेक अप मी अप, अरे मम्मी ने क्यों उठा दिया होगा मुझे. नहीं. नरेटर. देयर इज नो एस्केप नाउ, नेहा गेट्स अप एंड गेट रेडी. Can you imagine that what happened the next day? Neha wakes up with a start. Her watch says it is 6 o'clock. She calls out to her mother. अगले दिन क्या हुआ? उसकी मम्मी ने भी नहीं जगाया, किसी ने नहीं जगाया, अपने आप ही उठ गई वो, है ना. माँ, who woke me up today? आज किसने उठाया? Mother smiles. मम्मी जो है स्माइल करती है. Who else? You of course, अपने आप तुम उठी हो. But I was sleeping, मैं तो सोई हुई थी, मैं कैसे उठ सकती हूँ? How could I? Now tell me, why do you eat your lunch? अब मम्मी कहती है कि बताओ तुम लंच क्यों खाती हो? मुझे भूख लगती है. नेहा कहती है I feel hungry, मेरे को जब भूख लगती है तो मैं खाती हूँ. Why do you sleep at 9 every night? फिर तुम रात में 9 बजे क्यों सो जाती हो? तो कहती है कि भाई मुझे थोड़ा लगता है कि नींद आती है तो मैं सो जाती हूँ. मदर. देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट. अब मैं बताती हूँ, तुम्हारे अंदर भी एक घड़ी है जो तुम्हें बताती है कि कब तुम्हें खाना है. व्हेन टू स्लीप, कब तुम्हें सोना है. एंड व्हेन टू वेक अप, और तुम्हें कब जगना है. ओहो, ये बात थी. आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस. अब मैं अपनी जो है बस को नहीं छोड़ना चाहती. मदर कहती है रिलैक्स, टुडे इज संडे. टन टन, अब तो मज़ा आ गया. ओ हो. ओके ओके मदर, ठीक है. नाउ वी जस्ट डिस्कस द न्यू वर्ड्स. स्नगल्स. स्नगल्स मीन्स ठहरना.
थोड़ा रुको, मैं उठना नहीं चाहती। मटर्स यानी कि बड़बड़ाना, मटर्स मतलब बड़बड़ाना। विंडो सिल, विंडो सिल मतलब जहाँ वो दरवाज़ा खुलता है उसका विंडो का, वो जो दहली होती है उसको कहते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स मीन्स व्हाट, आराम करो थोड़ा सा, है ना, रिलैक्स करो। अब यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर, ओके, दिस इज मल्टीपल चॉइस करेक्ट आंसर questions. What time did Neha's clock ring every morning? What time यानी कि वो समय बताइए। नेहास क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग, जो उसकी जो घड़ी है वो कितने बजे? 6 o'clock, यानी सी आंसर इज राइट। What did the bird says? बर्ड्स क्या कहते हैं? वेक अप, है ना, उठो 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 उठो, यानी बी। What is inside you that makes you get up the same time every day? Our body clock, our body clock. हमारी आईज और हमारे फीट तो कुछ भी नहीं कहते, हमारी बॉडी क्लॉक हमसे कहती है। हाँ, नाउ वी कैन जस्ट, इनको आपको बहुत अच्छे से देखना है। ये जो आपको अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं वो रैंडम है और इसको आपको सही करके लिखना है। तो ILESM, तो इसका क्या स्पेलिंग बनेगी? स्माइल। और अलार्म, सेकंड वाले का क्या बनेगा? MRALA, ये है अलार्म। और नीचे वाला है क्लॉक, CLOCK, क्लॉक। इसके बाद है मॉर्निंग, क्या है? MORNING, मॉर्निंग। और उसके बाद क्या है बताओ? और नीचे है विंडो, और इसमें क्या बनेगा? ये आपके लिए है, ठीक है। एंडोन्स भी बन सकता है ना। चलो, साउंड, यू हियर साउंड, योर फ्रेंड हियर। देखो, कार की आवाज़ है तो गुर्र, है ना, लड़की की आवाज़ है, पेड़ की आवाज़ सुर, बर्ड्स की आवाज़ चिरपिर, हेलो हेलो, है ना, माइक की आवाज़ हेलो हेलो। If there is no clock in the house to wake up you in the morning, how will you wake up? I wake up early in the morning. My mother vibrate me. My mother vibrate me. अक्सर बच्चों के साथ क्या होता है? मम्मी झंझोड़ के उठाती है, उठो उठो उठो। You will continue to sleep. और आप जो हैं सोना चाहते हैं। What are the different way of knowing the time during the day? अब देखो, समय जांचने के कई तरीके हैं। जो परछाई होती है, परछाई मतलब शेडो, उससे भी हम अपना टाइम बता सकते हैं, है ना। एक हमारा जो टाइमिंग है वो हमें वॉच से, क्लॉक से, और सन की वजह से भी हमें अपना टाइम पता लग जाता है। वर्ड बिल्डिंग एंड फाइंड द हिडन वर्ड्स, जैसे मदर इसमें कहीं लिखा हुआ है, MOTHER, मदर, ये लिखा हुआ है ना। और ये वर्ड्स जितने भी हैं, देख रहे हो आप, ये वर्ड्स जितने भी हैं ये आपको क्या करने हैं? इसमें ढूंढने हैं, ठीक है। आई समझ में? इसमें ढूंढने हैं, ये वाले में। जैसे मदर ढूंढ लिया, एक मैं आपको करके बता देता हूँ। वर्ड्स ढूंढना है ना, तो लो वर्ड्स ढूंढ लेते हैं अपन। वर्ड्स कहाँ हैं? थोड़ा सा और ऊपर लेना पड़ेगा, है ना। ओहो, हमें भी नहीं मिल रहा है तो वर्ड्स आपको ढूंढना है, ठीक है। अभी हम देखते हैं वर्ड्स कहाँ पे, नीचे भी हो सकता है ना भाई। देखो वर्ड्स, बी देखते हैं सबसे पहले, बी कहाँ है? देखते हैं वर्ड्स कहाँ है। बी, अब तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। पता ही नहीं है।
अच्छा कोई और वर्ड ढूंढते हैं ना। देखो क्लॉक, तो सी, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। कहाँ मिला बताऊँ? ये रख लो नीचे तक, ये क्लॉक रहा, ठीक है। और आप घूमना, ठीक है। चलो हम चलते हैं। टिक टॉक, टिक टिक, ये तो आप खुद लिखें। वेकअप डियर वेकअप फास्ट, ये किसने कहा? ये बर्ड्स ने। और किससे कहा? नेहा से। माँ, हु वेक मी अप टुडे, आज मुझे किसने उठाया? हु सेड? नेहा। टू हुम? मदर से। वाई डू यू स्लीप एट 9? मदर ने कहा। किससे कहा? नेहा से कहा। किसने कहा? किससे कहा? इसका मतलब है किसने कहा, हु सेड, एंड टू हुम, किससे कहा, ठीक है। ये वाली बात है। वॉज वर्ड, सबसे पहले बात हमें देखनी है कि वॉज किस में आता है और वर किस में आता है, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तो वॉज आएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो ये आएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर आएगा। ये प्लूरल में आएगा, ठीक है। तो हम देखें पहले, चलो। राम, अब राम क्या है? सिंगल है, तो वॉज अ गुड प्लेयर। काउज बहुत सारी हैं, तो हम क्या कहेंगे? वर। काउज है ना, प्लूरल है कि सिंगुलर है? प्लूरल है, बहुत सारी काउ में, तो वर आएगा। दैट माई टॉयज, माई टॉयज, तो टॉयज तो देखो आपने, बहुत सारे टॉयज हैं। वर ब्रोकन। हर फ्रॉक, अब एक ही फ्रॉक है ना, तो वॉज टू लॉन्ग। मार्केट, द मार्केट, एक ही मार्केट है, तो वॉज। चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन जो है चाइल्ड का प्लूरल है, तो हम क्या करेंगे? इसको वर लगाएंगे, WERE, वर हैप्पी। अब फ्लावर्स भी आपने देख लिए, तो फ्लावर्स तो बहुत सारे हैं, तो इसमें भी वर लगाएंगे। आ गई समझ में आपको? अब देखिए, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ। यू विल नीड दीज वर्ड्स। अब देखिए, पुल्ड आउट, इनसाइड, कॉल्ड आउट, बिहाइंड और अंडर। सबसे पहले हम इसका मतलब जान लेते हैं। पुल्ड आउट, पुल करने का मतलब क्या होता है? खींचना। इनसाइड मतलब अंदर, कॉल्ड आउट मतलब बुलाता है, बिहाइंड यानी पीछे, अंडर यानी उसकी छत्र छाया में। यस्टरडे आई लॉस्ट अ बुक, आई बुक्ड फॉर इट एवरीवेयर, आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर, मैंने सब जगह ढूंढ ली। आई लुक्ड इनसाइड, बिहाइंड द डोर, बिहाइंड द डोर। देखो ये लड़की को देखो, वो पीछे देख रही है, बिहाइंड द डोर। और इनसाइड द कपबोर्ड, इनसाइड द, अंदर की तरफ देख रही है ना, तो इनसाइड द कपबोर्ड। आई लुक्ड अंडर द बेड, देखो उसके नीचे घुस के देख रही है ना, तो अंडर द बेड। I could not find it anywhere. Then I dash. Then I pulled up. Then I called out. शेरू, शेरू किसका नाम है? यहाँ कुत्ते का नाम होगा, है ना। तो I called out शेरू. शेरू, my dog, came running to me and asked him to look my book. He pulled out another book from my bag. फिर मैंने अपने कुत्ते को बुलाया, तो उसने pulled out, खींच ली, ठीक है। pulled out, खींच ली। तो I called out
शेरू अंडर द बेड, लुक इनसाइड द कपबोर्ड एंड बिहाइंड द डोर. ये आपको करना है. अब देखिए, हियर इज अ वर्ड क्लॉक. राइट डाउन द वर्ड रिलेटिंग टू क्लॉक. एक सेंटेंस बना दो. माई क्लॉक इज वेरी बिग. द साउंड ऑफ द क्लॉक इज ट्रिंग ट्रिंग, है ना. वॉच, अनदर वर्ड वॉच. और नेम द डिफरेंट पार्ट्स. टाइम, डिफरेंट पार्ट्स. अब नीडल के बारे में बता सकते हैं. वर्ड इन योर ओन लैंग्वेज. घड़ी, पिक्चर अपने को यहाँ बनानी है. ठीक है. हियर इज अ वर्ड मॉर्निंग. राइट डाउन द वर्ड रिलेटेड टू मॉर्निंग. इन भी लगा दो. रिंग भी बना सकते हैं. मॉर्न भी बना सकते हैं, है ना. तो इनसे वर्ड्स बनाने हैं आपको मॉर्निंग को यूज़ करते हुए. 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स बनाने, है ना. रिंग भी बना दिया, इन भी बना दिया, ऑन भी बना दिया, है ना. मॉर्न भी बना दिया. तो और क्या बना सकते हैं. मिंग भी बना दिया. Now this is over your lesson. So my dear students, this is all about your lesson. You have to revise it and write down in your copy what is given in your book. If you are not able to write down in the copy, you just read the lesson and whatever you understand you have to put. Don't bother about, worry about your mistakes. Mistake can be corrected. Okay, thank you very much.